Good morning, my dear class 3 students. Welcome back to online class. Today we will study moral value. So open your moral value book, page number 44, chapter number 8. Page number 44, chapter number 8. This one, page number 44, chapter 8. The monk and the snake. Okay? So through this story we will learn to be kind and polite with everyone, okay, but also learn to protect ourselves from the people who may harm or hurt us, okay, and we should learn to forgive and never take unfair advantage of another's good behavior, okay. So गुड मॉर्निंग क्लास 3 स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोरल वैल्यू की बुक पढ़ने जा रहे हैं और इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ खोलिए पेज नंबर 44 चैप्टर नंबर 8 द मोंक एंड द स्नेक। ओके, सो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हम लोग सीखेंगे कि हमें दयालु होना चाहिए, हमें पोलाइट होना चाहिए, सभी के लिए, मतलब सभी के प्रति, और हमें अपने आप को बचाना भी आना चाहिए अगर कोई हमको नुकसान पहुंचाने वाला हो या हमको कोई नुकसान पहुंचा रहा हो या परेशान कर रहा हो। ठीक है, सो ये सब चीजें भी हमें आनी चाहिए। हम्म और इसके साथ साथ हमें सीखना चाहिए, या हमें सीखना है, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि हमें माफ कर देना चाहिए लोगों को, और किसी के अच्छे बिहेवियर की वजह से, किसी के अच्छे बिहेवियर, कोई अच्छा है आपके प्रति तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस स्टोरी में सीखेंगे। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। Okay, student, this is the story of forgiveness, self-respect and politeness. This is the story of a cruel snake who became polite and kind. Okay, so students, ये स्टोरी है माफी की, ये स्टोरी है आत्मसम्मान की, ये स्टोरी है पोलाइटनेस की, नम्रता की। इस स्टोरी में एक सांप है जो बहुत ही क्रूर था, लोगों को परेशान करता था, लेकिन बाद में वो पोलाइट हो गया, नम्र बन गया, दयालु बन गया। तो ये स्टोरी है। चलिए इस स्टोरी को देखते हैं, हम लोग साथ में पढ़ते हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी। मैं इस स्टोरी को रीड करने जा रहा हूँ एंड यू ऑल विल रिपीट आफ्टर मी, और आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सो दैट यू विल प्रोनाउंस करेक्टली, ताकि आप सही सही प्रोनाउंस कर पाए, सही सही उच्चारण कर पाए। ठीक है, सो रिपीट आफ्टर मी, द monk and the snake. Repeat after me, the monk and the snake. Good. Once upon a time, there was a small village named Haripur. The people of Haripur were simple farmers who lived their lives peacefully. The village had a 100 years old banyan tree, which was the center of all its activities. The village elders meet daily under the banyan tree to discuss important matters. The children played near it, and the woman fetched water from the well near it. One day, as the village elders were discussing something important under the banyan tree, a black cobra appeared from nowhere. It was as dark as the night and hissed as it fled
spread its hood. The village elders were too scared to move. As the village elders mustered courage to move away from the cobra, the poisonous cobra bit the village headman. The village headman died in a few minutes. After this, the cobra made the banyan tree its home. It killed anyone who, turn to next page, page number 45, came near it. Many snake catchers came to catch the cobra, but in vain. The cobra killed each and every one of them. The peaceful village had lost its peace, and everyone lived in terror. One day, a traveling monk came to the village. He was tired and needed a place to rest. Unaware of the danger that lay before him, he went and sat under the banyan tree. Immediately, he heard a hiss and saw a huge black snake in front of him. The monk looked calmly at the snake and did not move. The snake was surprised at the monk's lack of fear. Are you not scared of me? Do you know that I am very poisonous and the whole village is scared of me? This banyan tree is my home. Therefore, go away immediately, or else I will kill you, hissed the cobra. Hearing this, the monk smiled calmly and replied, I will not go from here. If you want to kill me, then please do, but I will not move. The cobra was about to bite the monk when the monk said, do you know that you are going to die soon of starvation? The entire village will go away from here, and there will be no food for you. However, if you live peacefully and not harm the villagers, they will take care of you and feed you. The black cobra reflected upon the monk's words and realized
its mistake. It realized how lonely it was because of its own behavior. It promised to change itself immediately. Upon seeing the monk talking to the cobra. Okay, students, till here we finish. स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने यहाँ तक फिनिश किया। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोग क्या करेंगे, अपने से आगे के पेजेस को पढ़ेंगे। यू विल रीड दीज थिंग्स, यू विल दीज रीड द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, इसका रेस्ट पार्ट जो है वो आप लोग खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी। मैं इस जितना दूर हम लोगों ने पढ़ा है इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इन हिंदी में, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल लिसन केयरफुली। आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग, हम शुरू कर रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए स्मॉल विलेज नेम्ड हरिपुर। एक समय की बात है, कहीं पर एक विलेज था जिसका नाम था हरिपुर। एक छोटा विलेज था जिसका नाम था हरिपुर। द पीपल ऑफ हरिपुर वेयर सिंपल फार्मर्स who led their lives peacefully। और उस हरिपुर के जो लोग थे वो साधारण किसान थे और वो अपना जीवन बहुत ही शांति पूर्वक बिताते थे, बहुत आराम से बिताते थे, बहुत शांति से बिताते थे। The village had a 100 years old banyan tree। और इस गांव में एक 100 साल पुराना बनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था। which was the center of all its activity। और वो जो था बरगद का पेड़, वो उसके आसपास में सारी एक्टिविटीज होती थी, मतलब वो सेंटर था उस पूरी एक्टिविटीज का, मतलब वहां पे कई सारे काम होते थे। जैसे द विलेज एल्डर्स मीट डेली अंडर द बनियन ट्री। गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग उसी बनियन ट्री के नीचे में, उसी बरगद के पेड़ के नीचे आपस में मिलते, बैठते, बात करते, टू डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर्स। और लोग वहां पर बैठ करके इम्पोर्टेंट मैटर को डिस्कस करते थे, इम्पोर्टेंट मैटर पे बात करते थे। द चिल्ड्रन प्लेड नियर इट एंड द वुमेन फेच वाटर फ्रॉम द वेल नियर इट। और बच्चे भी वहीं पर खेलते थे, वहीं पास में। और वहां की जो महिलाएं थी, जो लेडीज थी, वुमेन्स थी, वो लोग पानी लेने वहीं उसी बरगद के पेड़ के पास में एक वेल था, एक कुआं था, उस वेल से पानी लेने जाती थी। तो वो सेंटर था, वहां पे सभी लोग आते थे, सभी लोग वहां पर बैठते थे, बच्चे खेलते थे, लेडीज आती थी, बुजुर्ग लोग आते थे, जवान लोग बैठते थे, सभी लोग वहां पे रहते थे। वन डे, लेकिन एक दिन, as the village elders were discussing something important under the banyan tree। एक दिन गांव के सभी बुजुर्ग लोग बैठ करके कोई बहुत ही जरूरी चीज पर वार्तालाप कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे किसी चीज का, उसी पेड़ के नीचे बैठ करके। ए ब्लैक कोबरा अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। एकदम अचानक से वहां पे एक ब्लैक कोबरा आ गया। ब्लैक कोबरा, कोबरा एक तरीके का सांप है जो बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत ही जहरीला होता है, हम लोग जानते हैं आप। हाँ, तो ब्लैक कोबरा सांप वहां पे अचानक से प्रकट हो गया, मतलब कहीं से आ गया वहां पर। इट वॉज एज डार्क एज नाइट। और वो इतना काला कलर का था, बड़ा डेंजर, खतरनाक दिख रहा था, पूरा काला, ऐसा ब्लैक था जैसा कि रात होती है, इतना काला। एंड हिस्ड एज इट फ्लेरेड इट्स हुड। और उसने अपने फन को फैलाया और हिस करना शुरू कर दिया, डसना शुरू कर दिया। द विलेज एल्डर्स वेयर टू स्केयर्ड टू मूव। और गांव के जितने भी बुजुर्ग थे वो डर गए, वहां से भागने लगे। As the village elders mustered
courage to move away from the cobra. The poisonous cobra bit the village headman. The village headman died in a few minutes. और वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग भागने लगे, इधर उधर होने लगे, और वहाँ के लोगों ने उस कोबरा को भगाने की कोशिश की या फिर खुद वहाँ से हटने की कोशिश की। और ये जो कोबरा था ये उस गांव के जो हेडमैन थे, जो मुखिया थे, उसने काट दिया। इस सांप ने उसको डस दिया, और जो वो गांव के मुखिया थे वो थोड़ी ही मिनट में, कुछ ही मिनट में उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। आफ्टर दिस द कोबरा मेड द बनियन ट्री इट्स होम। और ऐसा होने के बाद उस कोबरा ने उस बनियन ट्री को अपना घर बना लिया। अब वो वहीं रहने लगा, अब वो कहीं नहीं जाता था, वहीं रहता था। अब गांव के लोग क्या होगा, अब गांव के लोगों के साथ क्या होगा? गांव के लोग तो डर गए। इस गांव के मुखिया की डेथ हो गई उस सांप के काटने से, तो सभी लोग डर गए और अब कोई भी उस बनियन ट्री के पास नहीं जाता था। इट किल्ड एनीवन हु केम नियर इट। और वो जो भी उस पेड़ के आसपास में आता वो उसको मार डालता था। मैनी स्नेक कैचर्स केम टू कैच द कोबरा बट इन वेन। बहुत सारे सांप पकड़ने वाले आए उस कोबरा को पकड़ने के लिए, लेकिन सब बेकार था, कोई नहीं पकड़ पाया। द कोबरा किल्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और कोबरा ने उन सभी लोगों को मार दिया, जिसको जो भी उसको पकड़ने आता था सभी को मार देता था। द पीसफुल विलेज हैड लॉस्ट इट्स पीस एंड एवरीवन लिव्ड इन टेरर। और वो जो गांव जो शांत था, बहुत ही वहाँ के जो लोग थे बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे, वो गांव शांतिपूर्वक था। वो गांव में अब सभी लोग डरने लग गए थे, टेरर से। उनके अंदर डर हो गया था। किसका डर? उनके अंदर किसका डर हो गया था? उनके अंदर वो सांप का डर हो गया था, है ना? सभी लोग, अब किसी गांव में ऐसा होगा कि वो सांप आएगा और सब काटना शुरू कर देगा, तो लोग डर ही जाएंगे ना, लोग मरने लगेंगे तो लोग डर जाएंगे। वन डे, अब आगे की कहानी देखते हैं। वन डे ए ट्रैवलिंग monk came to the village. एक दिन एक साधु महात्मा थे जो ऐसे ही उस जगह से गुजर रहे थे, तो वो उस गांव में पहुंचे। He was tired and needed a place to rest. वो बहुत थके हुए थे, इसीलिए उनको कोई एक जगह चाहिए थी जहां वो आराम कर सके। Unaware of the danger that lay before him, he went and sat under the banyan tree. और वो उस खतरे से अनजान, उनको पता नहीं था कि वो खतरा है, वो उस पेड़ के नीचे, वो क्या किए, वो उसी पेड़ के नीचे गए और जाकर के वहां पे बैठ गए। इमीडिएटली, और अचानक, तुरंत, he heard a hiss and saw a huge black snake in front of him. और अचानक उन्होंने देखा उनको आवाज सुनाई दी हिस की। मतलब जो सांप हिस करता है उसकी आवाज सुनाई दी, और उन्होंने देखा एक बड़ा सा काला रंग का सांप उनके सामने खड़ा है। The monk looked calmly at the snake and did not move. monk जो थे, जो साधु महात्मा थे, वो एकदम शांति पूर्वक उस सांप के सामने बैठे हुए थे, और वो हिले डुले नहीं, उनको डर नहीं लगा, बहुत शांति से बैठे हुए थे। हम में से 100% लोग, 90% से भी ज्यादा, 100% ही कह सकते हैं, हर किसी को सांप से डर लगता है। आपको लगता है ना? देखें ना सांप, हाँ, हम सभी को सांप से डर लगता है। और ऊपर से वो ब्लैक कलर का कोबरा हो तो ओ माय गॉड, देख के ही उछल उछल के भागना शुरू कर देंगे हम लोग, है ना? हाँ, तो हुआ ये कि मोंक बहुत शांति पूर्वक वहां बैठे, और बहुत शांति पूर्वक उस सांप की तरफ देखे, और वो वहां से हिले नहीं।
द स्नेक वॉज सरप्राइज्ड। अब जो स्नेक था वो सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। एट द मोंक लैक ऑफ फियर, वो जो साधु महात्मा है उनके नहीं डर रहे हैं, इस वजह से वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। क्यों भाई, ये क्यों नहीं डर रहा है? पूरा गांव हमसे डरता है और ये नहीं डर रहे हैं हमसे, ऐसा वो सोच रहा था। और उसने कहा, आर यू नॉट स्केयर्ड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? डू यू नो दैट आई एम वेरी पॉइजनस एंड द होल विलेज इज स्केयर्ड ऑफ मी? क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं बहुत ही जहरीला हूं और पूरा गांव मुझसे डरता है और तुम नहीं डर रहे हो? ऐसा उस सांप ने कहा। दिस बनियन ट्री इज माई होम, और ये बरगद का पेड़ ये मेरा घर है, इसीलिए therefore you go away immediately and or else I will kill you, hissed the cobra. कोबरा ने हिस करते हुए कहा, क्या कहा? कि ये जो बनियन ट्री है, ये बनियन ट्री मेरा घर है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ अभी के अभी, और अगर नहीं गए तो मैं तुमको मार डालूंगा, ऐसा कोबरा ने कहा। Hearing this, the monk smiled calmly and replied. अब इस बात को सुन करके मोंग जो थे, महात्मा जी जो थे, साधु जी जो थे, वो बहुत मुस्कुरा के और बहुत ही शांतिपूर्वक उन्होंने जवाब दिया। बहुत ही संयम के साथ, शांतिपूर्वक, बड़े प्यार से उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुनेंगे। आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, उन्होंने कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इफ यू वॉन्ट टू किल मी देन प्लीज टू डू, बट आई विल नॉट मूव। उसने कहा, उन महात्मा ने कहा कि मैं यहां से नहीं हिलूंगा, तुम चाहते हो मुझे मारना तो तुम मार सकते हो, लेकिन एकदम खुशी से मार दो मुझे। आप चाहते हो मुझे मारना, एकदम खुशी से करिए, लेकिन मैं यहां से नहीं हिलूंगा। द कोबरा वॉज अबाउट टू बाइट द मूंग। अब कोबरा उन साधु महात्मा जी को काटने ही वाला था। when the monk said, और monk ने कहा, जैसे काटने वाला था उसी समय monk ने कहा, do you know that, क्या तुम ये जानते हो, you are going to die soon of starvation, क्या तुम ये जानते हो कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो भूख से। ये बात सुन के कोबरा को कैसा लगा होगा कि वो ये बोल रहे हैं कि डू यू नो दैट यू आर गोइंग टू डाई सून ऑफ स्टारवेशन, आप भूख से मरने वाले हो कुछ ही दिन में। कोबरा को वो बोल रहे हैं। द एंटायर विलेज विल गो अवे फ्रॉम हियर एंड देयर विल बी नो फूड फॉर यू, और तुम ये जानते हो कि पूरा गांव जो है वो अब यहाँ से कहीं और जा रहा है तुमसे डर करके, और यहाँ पर फिर तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बचेगा। However, if you live peacefully and not harm the villagers, they will take care of you and feed you. लेकिन अगर तुम बड़े प्यार से सभी के साथ रहते हो, शांतिपूर्वक इस गांव में रहते हो, इस जगह पे रहते हो, तो और किसी को तुम गांव वालों को अगर परेशान नहीं करते हो, तो ये गांव वाले तुम्हारी टेक केयर करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे, इवन तो तुमको खाना भी खिलाएंगे, तुम्हारे लिए खाना भी देंगे, ऐसा मोंक ने कहा। मोंक ने उसको समझाया। The black cobra reflected upon the monk's word and realized its mistake. और उस कोबरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको लगा कि हाँ, ये उसकी गलती है, मेरे काटने की वजह से सभी लोग डरते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता, ये उसको लगा। It realized how lonely it was because of its own behavior, और उसको ये महसूस हुआ कि हाँ, कितना अकेला है वो, कोई उससे मिलने नहीं आता, कोई उससे बात नहीं कर सकता, कोई उससे मिल नहीं रहा है, सब दूर से भागते हैं, बहुत लोग उसको मारना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? उसके खुद के बिहेवियर की वजह से, खुद के व्यवहार की वजह से। तो अगर हम भी बहुत गुस्सैल हो, बहुत झगड़ालू हो, बहुत परेशान करने वाले हो, तो हमसे कौन खुश रहेगा, कौन हमारे साथ रहना चाहेगा, है ना? कोई भी नहीं। यस, इट प्रॉमिस, आगे देखते हैं।
It promised to change itself immediately. और उसने वादा किया मोंग से कि या अपने आप से वादा किया कि वो अपने आप को चेंज करेगा, तुरंत चेंज करेगा, अपना बिहेवियर चेंज करेगा। अपॉन सीइंग द मोंग टॉकिंग टू द कोबरा। अब जब यहीं तक हम लोग देखते हैं, मोंग जब कोबरा से बात कर रहे थे तो लोग देख रहे थे। तो यहीं तक हम लोग की स्टोरी खत्म होती है कि उसने अपना बिहेवियर चेंज करना चाहा। और वो अपने आप को चेंज करने का प्रॉमिस किया। अब वो अपने आप को चेंज कर दिया। So okay, so now rest of the story we will read on the next video. अगली जो कहानी है, इससे आगे की जो पोर्शन है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक वेट एंड वॉच। तब तक आप क्या करेंगे, इसको पढ़ाई कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है। योर होमवर्क इज, आपका होमवर्क है, राइट डाउन दिस वर्ड मीनिंग, सर्च फ्रॉम योर डिक्शनरी। आप डिक्शनरी से इसकी हिंदी मीनिंग भी सर्च करेंगे और लिख करके फोटो खींच के मुझे भेजेंगे, ठीक है। आप सभी को मेरा नंबर पता है ना। और अगर नहीं पता है आप अपने दोस्तों से ले सकते हैं, सभी को पता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें वर्ड मीनिंग जो लिखे हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी हिंदी मीनिंग भी आप लिखेंगे ताकि आपको जल्दी याद हो, ठीक है। आप डिक्शनरी से खोजिए, अगर आप डिक्शनरी नहीं है तो नेट से खोज सकते हैं। सर्च करेंगे मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेच, FETCH, फेच इन हिंदी, ऐसे करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ओके, so now this is for all today students. So keep learning, keep studying, and be safe, be kind, and be polite. Okay, have a great day. Thank you for watching.